Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Good morning to everybody. This lecture is for Human Anatomy Semester 1 students for all technologies. My name is Dr. Abdul Majid Khan and I am lecturer at Ghazali Institute of Medical Sciences. Along this, I am also working as a hospital pharmacist at Combined Military Hospital, Peshawar. Today, we will discuss about the anatomy of the stomach. Basically, stomach is a part of the gastrointestinal tract and it is a part of the abdominal cavity. So, we will discuss the region, the features, the blood supply to the stomach and its location, and the abdominal cavity as well. So this is a general diagram in the abdominal cavity. Consider this is the abdominal cavity and this is the part that is located. What shown is the J-shaped structure and that is the stomach. The hole from mouth to the large intestine, the anal part, that is all considered as the alimentary canal, and this portion is in the stomach area. Okay, this is the internal diagram. From there, the part of the esophagus and this whole dilated area up to the end of this narrow area, that is the pyloric sphincter. In between this part is the stomach area. Okay, stomach, it is the dilated part of the alimentary canal between the esophagus and the small intestine. As I have mentioned that it is the dilated part. This is the lower esophagus and this is the small intestine, the pyloric, and from there onward the small intestine will start. So this whole dilated part of the alimentary canal, it is considered is the stomach. It is a muscular sac because look, it looks like that is a muscular layer. It have a circular layer and the transverse muscles. Okay, circular muscles or the transverse muscles. It is J-shaped structure. Location इसकी कहाँ पे है? It occupies the left upper quadrant, the epigastric and the umbilical region. इन तीन जगहों में ये सारा जो स्टमक है that is occupied. ठीक है, इसको अगर हम डायग्राम में देखें, ये हमारे पास epigastric है, ये लेफ्ट आ गया, लेफ्ट hypochondric region, that is the left upper quadrant and the umbilical area. ठीक है, ये तीनों पार्ट्स में ऑक्युपाई करते हैं. एंड मच ऑफ इट लाइज अंडर द कवर ऑफ द रिब्स. क्योंकि साइड में रिब्स है, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट ऑफ दैट इज कवर्ड बाय द रिब्स. इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ T10 एंड L3 वर्टेब्रल. जो T10 और L3 वर्टेब्रा है उसके लेवल पे ये पाया जाता है. T10 इज thoracic 10, जो thoracic nerve है, and L3 is the lumbar region. So this is from, ये posterior view आपको बता रहे हैं जो कि abdominal wall के साथ back side to vertebrate column के साथ attach होता है. The position of the stomach varies with the body habitats. जो body की position है वो change होती है body की posture की वजह से. आप left पे होते हैं, आप right पे होते हैं, तो आपकी जो stomach है that's why we say it is muscular sac. So ये shift to left or right हो जाता है. ठीक है. Next is the region of the stomach. That is mean the composition, the stomach, where part of the stomach is composed of. So stomach is composed of the following region. These are, the first one is the cordia, which surround the opening of the esophagus into the stomach. जो top portion है जो कि ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट करेंगे, उस पोर्शन को कहेंगे हम कार्डिया. दिस इज द कार्डिक एरिया. ठीक है, इट कनेक्ट द ईसोफेगस विद द स्टमक. सेकेंड इज द फंडस ऑफ द स्टमक, विच इज द एरिया अबव द लेवल ऑफ द कार्डियल ऑरिफिस. जो कार्डियल ऑरिफिस है, जो ओपनिंग है, ऑरिफिस मीन्स ओपनिंग, जो कार्डियल ओपनिंग है उसके लेवल के अबव जो पार्ट है उसको हम कहेंगे फंडस. दैट इज द कार्डियल ओपनिंग. और उसके लेवल के अबव जो पार्ट है मीन्स यहाँ तक, तो ये सारा आपके पास किस चीज़ में आएगा?
just consider that this is the orifice, cordial orifice, and above this part, this is all is the fundus. Okay, and next is the okay, third is the body of the stomach, which is the largest region of the stomach. This is the largest region. Corps भी कहते हैं some books में, CORPS, corps, and that is the largest body, that is the body of the stomach. And the fourth one is the pyloric part, which is divided into pyloric antrum and pyloric canal, and is the distal end of the stomach. जो उसका लार्ज एरिया है ऑफ द स्टमक का, उसको हम कहेंगे फाइलोरिक एंड, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइलोरिक एंट्रम एंड फाइलोरिक कैनाल. दिस इज द एंट्रम, फाइलोरिक एंट्रम, एंड दिस इज द फाइलोरिक कैनाल. ठीक है, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन इज the small intestine, the duodenum part is started. Okay, along this is the curvatures, the curve shape, that is the lesser curvature to which lesser omentum is attached, and this is the greater curve, that is the greater curvature is attached. ठीक है. Other features of the stomach में क्या क्या आएंगे? Openings. दो टाइप्स के ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, एक अप साइड पे एंड एक बॉटम साइड पे. जो अप साइड पे है वो है गैस्ट्रो इसोफेजियल, दैट इज गैस्ट्रो और इसोफेगस को जो अटैच करेंगे, दिस इज द स्फेंटर. तो इसको हम कहेंगे द ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम कहेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग, दैट इज टू द इसोफेगस पार्ट. सेकेंड इज द फाइलोरिक, दैट इज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली ड्यूडिनम, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्फेंटर. स्फेंटर बेसिकली क्या है? काइंड ऑफ, ये भी होल्स हैं, ओपनिंग्स हैं, बट दैट इज अटैच टू द मसल्स. सो मस्कुलर होल्स को हम कहेंगे स्फेंटर्स. द कार्डिक स्फेंटर, दैट इज द लोअर इसोफेगस स्फेंटर, दैट क्लोजेस ऑफ द टॉप एंड ऑफ द स्टमक. दैट इज बेसिकली क्या है कि जो टॉप एंड है वो कार्डिक एरिया के साथ है, एंड दैट इज कॉल्ड द कार्डिक स्फेंटर. और जो लोअर एरिया है that attached to the duodenum, and this is the in the region of pyloric, so that is called the pyloric sphincter. ठीक है. कर्वेचर है, ये तो मैंने पहले बता दिया स्लाइड में. लेसर कर्वेचर है एंड ग्रेटर कर्वेचर है. द ग्रेटर कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ अटैचमेंट फॉर गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट. यहाँ से गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट अटैच होगा और ग्रेटर ओमेंटम अटैच होगा, जबकि लेसर कर्वेचर से क्या होगा? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द लेसर ओमेंटम. ठीक है, लेसर ओमेंटम होगा और यहाँ पे हेपेटोलिगामेंट इज बेसिकली अटैच्ड. ब्लड सप्लाई टू द स्टमक कैसे होगी? स्टमक ब्लड इज सप्लाइड बाय द फॉलोइंग आर्टरीज. तीन आर्टरीज हैं, उससे ब्लड सप्लाई होती है. द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दैट इज सप्लाई टू द कार्डिया ऑफ द स्टमक. जो टॉप पोर्शन है उसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेंगे. स्प्लीनिक आर्टरी दैट सप्लाई टू द ग्रेटर कर्वेचर, और कॉमन हेपेटिक आर्टरी सप्लाई टू द लेसर कर्वेचर. ये तीनों, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, तीनों अराइज फ्रॉम द मेसेंटेरिक आर्टरी. सिमिलरली वेन्स फ्रॉम द स्टमक रन्स पैरेलल टू द आर्टरीज, जो कि आर्टरीज जैसे जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होंगी? वेन्स भी जाएंगे. लुक एट दिस डायग्राम. ये अगर आर्टरी है तो इस डायरेक्शन में मोस्टली वेन जाते हैं. ठीक है, दोनों का काम क्या है? एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है. तो उसकी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये लाइनिंग है, दैट इज सेम. दैट्स व्हाई इट इज रिटन इज द रन्स पैरेलल. ठीक है, ये जो पैरेलल है दैट इज बेसिकली ड्यू टू. सो द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन इज बेसिकली अ लार्ज वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है? लार्ज वेन है, जो कि क्या है? स्टमक से भी ले लेते हैं, लेवर से भी ले लेते हैं, पेनक्रियास से भी ले लेते हैं, इंटेस्टाइन से भी आ जाता है, एंड कलेक्टिवली एक बड़ा वेन होता है, उसको हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन. ठीक है.
पोर्टल सर्कुलेशन, एक इंटरनल जो सर्कुलेशन है वो आ जाता है, जो कि नेक्स्ट किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि अभी आप लोगों का हिस्सा नहीं है इस टॉपिक के लिहाज से। जस्ट सिर्फ ये देख लें कि हेपेटिक पोर्टल वेन इज़ अ लार्ज वेन जो कि हेपेटिक, ड्यूडेनम और स्टमक से ड्रेन करते हैं। द शॉर्ट gastric vein, left and gastromental vein ultimately drain into superior mesenteric vein। ठीक है, ये सारा क्या होगा, शॉर्ट वेन हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ है, या लेफ्ट है, या गैस्ट्रिक वेन है, ये सारा आपके पास क्या है, सुपेरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में जाएंगे। और फर्दर इसको अगर हम देखेंगे तो सुपेरियर मेसेंटेरिक आर्टरी या सुपेरियर मेसेंटेरिक वेन आर दी क्या होगा, फिर इसके बाद ये जाते हैं जो वेन है वो जाएंगे सुपेरियर वेना केवा में, और जो बॉटम पार्ट है वो इन्फीरियर वेना केवा में। सॉरी, दिस इज द डायग्राम, इट शोज द हेपेटिक आर्टरी। लुक एट दिस डायग्राम एंड द स्प्लेनिक आर्टरी, द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरी। गैस्ट्रोमेंटल मीन्स गैस्ट्रो और ओमेंटम दोनों को सप्लाई करेंगे। राइट गैस्ट्रो आर्टरी, राइट आर्टरी, ये बेसिकली अगर इस डायग्राम को हम देखें ये आर्टरी सप्लाई करेंगे। सो एट द सेम टाइम ब्लू लाइन में मोस्टली वेन होता है। ठीक है, इन दोनों का कलर क्यों डिफरेंट होगा कि ब्लू में वेन होगा और आर्टरी को रेड से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, एक में होगा दूसरे में नहीं होगा। नेक्स्ट इज द lymphatic supply to the stomach. Stomach is supplied by the lymphatic system. Gastric lymphatic vessels that travels with the arteries along the greater and the lesser curvature of the stomach. जो ग्रेटर कर्वेचर है और लेसर कर्वेचर है उसको सप्लाई करेंगे lymphatic वेसल, और उसकी जो मूवमेंट कैसी है जैसे जो आर्टरीज हैं। lymphatic fluid drain into gastric and gastro-omentum lymph node that found in the curvatures. जो curvatures हैं वहाँ पे गैस्ट्रिक और गैस्ट्रोओमेंटम lymph nodes हैं, तो उसको ये सप्लाई करेंगे और फिर कर्वेचर फर्दर वो और सप्लाई करेंगे। बेसिकली इसका काम क्या है, ड्रेनेज है। Efferent lymphatic vessel from these nodes connect to the coliac lymph node and located on the posterior abdominal wall. जो efferent lymphatic vessel है of these nodes वो क्या करेंगे, coliac lymphatic node के साथ अटैच करेंगे जो कि posterior abdominal wall पे प्रेजेंट है। Nerve supply to the stomach. Nerve कैसे सप्लाई होंगी? Stomach is innervated by the following nerve that arises from the autonomic nervous system. Autonomic nervous system से nerve arise होती हैं और वो कौन सी nerve होंगी? Parasympathetic system से जो nerve arise होंगी, we know that कि autonomic nervous system is composed of two systems, the parasympathetic system and the sympathetic system. ठीक है, central nervous system का part है, जिसका सिंपल आप लोग ये देख लें कि फ्लाइट और फ्लाइट हम इसको देखेंगे। अगर ये फ्लाइट मीन्स अगर ऐसा सिचुएशन आएगी कि जिसमें आप या लड़ेंगे और या आप भागेंगे, ठीक है, तो ये लड़ेंगे या भागेंगे ये बेसिकली क्या है, आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ANS उसको सिंपल कहेंगे, ये बेसिकली क्या है आपके पास, पार्ट ऑफ दी जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये एक पार्ट है। तो उसका इसके लिहाज से हमारे पास ये आएंगे, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और दूसरा हमारे पास है सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपल आप लोग ये देखें कि 2F है, फ्राइट या फ्लाइट। ठीक है, या आप जाएंगे मतलब फ्लाइट करेंगे, भागेंगे, और या आप उधर क्या करेंगे, उसके साथ मुकाबला करेंगे। सो इन दो सिचुएशन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई दैट अराइज फ्रॉम द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक डिराइव फ्रॉम द वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है इंटीरियर और पोस्टीरियर वेगस है। बेसिकली वेगस को अगर हम देखें ये लार्ज आर्टरीज है, सॉरी लार्ज नर्व है, और वो क्या है बेसिकली आ जाता है डिफरेंट ऑर्गन को इनर्वेट करेंगे। तो जो फुल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसमें वेगस नर्व आया होता है, ट्रंक उसका जो मेन पार्ट है, तो उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से ये नर्व्स अराइव होते हैं। ठीक है, सेकेंड इज द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, वो T6 to T9 thoracic 6 से thoracic 9 तक जो नर्व्स हैं ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो वहाँ से अराइज होती हैं, एंड ऑल्सो कैरी सम पेन ट्रांसमिटिंग फाइबर इज वेल। ठीक है,
असाइनमेंट फॉर, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया है स्टमक की फुल एनाटॉमी, उसकी कॉम्पोजिशन है, उसकी स्ट्रक्चर है, जो उसको ब्लड सप्लाई है, लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई, सारा हमने पढ़ लिया है। सो नेक्स्ट आप लोग असाइनमेंट में ये करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टमक एंड हाउ इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। फूड को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, फूड को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे और फंक्शन स्टमक क्या क्या काम करता है, ठीक है, ये आप लोग करेंगे। What are the different type of gland that is present in the stomach or give its function? Glands, स्टमक के अंदर कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं और उनका काम क्या है, ये आप लोगों ने असाइनमेंट में लिखना है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, वी विल रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।